जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजां को गुजरने की भी मजाल न हो. Ladies and gentlemen, with hearts brimming with pride, Pakistan Air Force salutes every citizen of this great nation and the gallant warriors of our armed forces. Under their astute leadership, Pakistan Armed Forces surged ahead, inflicting a decisive blow to our adversary. We attribute this success to our matchless training, smart inductions, seamless operational readiness, and a homegrown kill chain sharpened by the mastery of modern warfare. For the first time in history, Pakistan Air Force conducted full-spectrum operations in this conflict, employing multi-domain warfare capabilities, including integration of space, cyber, and electronic warfare, along with strategic use of niche and disruptive technologies. During the first roundup, Pakistan Armed Forces in unison delivered a staggering blow to the adversary, achieving ascendancy in effects. Pakistan Army inflicted heavy damage to the enemy through destructive, precise, and strategic targeting, employing long-range vectors and unprecedented firepower. Whereas Pakistan Navy exhibited its unwavering resolve and deterred aggression. Pakistan Air Force destroyed 6 Indian Air Force jets, 3 Rafales, a Su-30, a MiG-29, a Mirage 2000, alongside Heron UAV. Ladies and gentlemen, today's flypast is more than a display. It is a tribute, a fiery salute to the resilience of our nation and to the undying spirit of Pakistan Armed Forces. As the fighter jets are running towards for a flypast, their approach signifies their resolve. Their speed identifies their combat potential, whereas their flashing lights would denote hope and bright future. You may please focus towards left side of the venue as the first aircraft of our fighter arsenal is about to reach the venue. And ladies and gentlemen, approaching the venue. Watch as the flares ignite, each burst a symbol of vigilance, each flare a fiery oath to defend, to deter, and to dominate. Next would be another fighter aircraft of our fighter arsenal, the pride of Pakistan. Ladies and gentlemen, the skies have come alive. This is more spectacle. This is legacy in motion. खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो. यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजां को गुजरने की भी मजाल ना हो. यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो.
खुदा करे न कभी खम सरे वकार वतन और उसके हुस्न को तशवीश माहो साल न हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयाते जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। आमीन। पाकिस्तान यूं ख़वातीन व हज़रात, एयर बेसेस नेस्तो नाबूद हुए। यूं S-400 डिफेंस सिस्टम हजीमत का निशान बना। ब्रावोस मिसाइल राख का ढेर हुए तो दिफाई तंसीबात खंडर का मंजर पेश करने लगी। पाकिस्तान का फतह मिसाइल भारत पर कहर बनकर टूटा तो JF-17 थंडर और J-10C ने फिजाई बर्तरी की धाक बिठा दी। पाक फिजाइया के शहपरो शाहीनों, तुम्हें कौम का सलाम। मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि जब बयानुम मरसूस का जिक्र हुआ तो इस हवाले से मानी की बात हुई कि क्या मानी है, तजवीद में क्या है कुरान करीम से, तो मैं ये सोचने लगा कि अगर किसी को बताना हो कि बयानुम मरसूस क्या है तो हम कहेंगे पाकिस्तान की कौम, शीशा पिलाई हुई दीवार, अफवाज पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप ये देखिए खातिन हज़रात के बच्चा जरा गिर जाता है ना तो माँ कहती है सदके कुर्बान, मैं वो मेरा लाल। ये माँ के कैसे लाल हैं जिनको माँ सजा के निखार के तैयार करके भेजती है कि पुष्ट मत दिखाना, जाओ दुश्मन की आंखों में आंखें डालो और उसे नेस्तो नाबूद कर दो। ये है पाकिस्तान की माँ, ये है पाकिस्तानियों की माँ। और आप कभी गौर करें, हमारे आपस में इख्तिलाफ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वी आर वन, वी आर बयानुन मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार, दैट्स इट। नो डाउट ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस ना सिर्फ अस्करी हिकमत अमली और बहादुरी का शाहकार है, बल्कि यह हमारी कौमी हमियत, वहदत और दिफाई तैयारी का भी मज़हर है। ज़मीन, फ़िज़ा और समंदर के साथ साथ टेक्नोलॉजी के महाज पर भी पाकिस्तान ने दुश्मन को चारों शाने चित कर दिया। और ख़वातीन व हज़रात, जोश और जज्बे से भरपूर मिली नगमा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन ये बात हमें 65 के करीब में जनाब सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने बताई। मलिका तरन्नुम नूर जहां की आवाज़ में इस हकीकत को आश्कार किया गया कि ए पुत्र कौन ने, और जब वो सुना और वो दिल जब उससे सिंक्रोनाइज करता है, जैसे हम कहते हैं कि भर आता है, तो यकीन करें वो आंखें खुशी और फख्र से चमकती हैं। वो आवाज़ अल्लाह ताला गरीक रहमत करे मलिका तरन्नुम नूर जहां को, उनसे हमने सुना जो कितने ही जवानों की लोरी बन गई। आज हमारी बड़ी प्यारी बेटी उसी याद को ताज़ा कर रही है और वही बात हमसे कह रही है कि ए पुत्र हटाते नहीं बिकते।